Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a lot of CLAT aspirants or other law entrance exam aspirants would have this major problem as to how do we manage our 12th board exams along with OLETS, MHCET, CULE या फिर कई सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और मे बी फॉर CLAT 2026 because this is taking a lot of our time. And we also have this kind of a stress here. If we do not do anything now and only concentrate on board exams, then we will have that long backlog, and that was the problem last year also, right? Backlog, having a lot of backlog, not being able to cover that properly, not being able to become a part of the process very, very clearly. So in this particular session, I'm going to be giving you a clear guidance as to how do you go about your preparation and how do you ensure that 12th board पर focus करते हुए, giving that primary focus as of now because that's too close now. How do we prepare for our CLAT exam or other law entrance exams as well, right? See, I think since you have started your preparation for any other law entrance or CLAT 2026, some of you may have prepared it last year as well for CLAT. You know how the exams work. You know there is a particular set of things that you have to do on a daily basis. And same goes for the board exams as well. Board exam में ऐसा नहीं होता है कि आपको एक दिन में 10 घंटे पढ़ना है और अगले दिन कुछ नहीं पढ़ना है. Every day you have to do certain things, one or the other, right? So how do you manage that? That's very, very, very difficult, right? So there are two to three ways to do that. Okay, the first way is कि हम time identify करें. ठीक है, let's say I have 10 hours in the day to study. और उन 10 घंटों में से मुझे किस तरह से पढ़ना है, how do I want to divide my time? You can do that कि मेरे को इस particular time पे या you could say सुबह के time पे I can do this that, right? So that is one way to go about it. आप उसके लिए थोड़ा अपने लॉ एग्जाम्स के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी निकाल सकते हो. 10 hours I'm pretty sure nobody is studying for board exam और even for अगर आप लॉ एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो उसमें भी 10 घंटे की फिलहाल जरूरत नहीं है, right? Second way is to identify tasks you want to do in your law exam as well as your board exam. Right. Let's say, for example, board exam में you want to study political science. Okay, you want to study accounts. You want to study, let's say, chemistry. कुछ भी subject हो सकता है. Now you want to study accounts today and you want to spend, let's say, 5 hours on accounts. ठीक है, you want to complete a full chapter. You want to complete, let's say, 2 chapters का revision. Okay. So how do I do that? एक साथ 5 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, right? आप 5 घंटों को at least 2 parts में divide करोगे. Right, so you can divide your tasks that way. कि this is what I have to do today, and then I will do the other exam. I will do the other thing. Okay. Third way to do is क्या करते हैं लोग दिन में ना 4 अलग अलग parts में divide करते हैं. They divide into 4 different routines. ठीक है. एक होता है morning routine, एक होता है afternoon, एक evening, एक late night. Most of us are night owls these days, है ना. हम लोग रात तक पढ़ते हैं. हम लोग सुबह लेट उठने की कोशिश करते हैं थोड़ा, राइट? सो लेट्स से योर डे स्टार्ट्स एट 10 इन द मॉर्निंग. तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपने पर्टिकुलर डे को 4 पार्ट में डिवाइड करो. ठीक है, मॉर्निंग 10 टू आफ्टरनून 1 तक एक मॉर्निंग स्लॉट हो जाएगा. टेक अ 2 hour ब्रेक, हैव लंच, यू कैन स्लीप फॉर सम टाइम, यू कैन टेक योर बाथ और व्हाटएवर यू वांट. अगर 10 बजे से पहले ना ले तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, फिर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक सेकंड स्लॉट हो जाएगा. ठीक है, देन अगेन यू कैन टेक अ ब्रेक. फिर आप एक अलग स्लॉट बना सकते हो फ्रॉम 7 o'clock टू 9 o'clock. ठीक है, 1 घंटे का अच्छा खासा ब्रेक हो गया. फिर आप 7 to 9 का एक वो बना सकते हो, एंड देन यू कैन टेक अनदर ब्रेक फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. और रात को हम 11 बजे से लेके 1 बजे तक और बना सकते हैं. तो अब ये क्या हो गया, दिस हैज बिकम अ कंप्लीट शेड्यूल फॉर यू, जो आप पूरा का पूरा 10 hours का दिन में बना सकते हो. अब आपके पास जब एक टाइम फ्रेम है कि भाई दीज आर द टाइम फ्रेम वेयर आई हैव टू स्टडी, वेयर आई हैव टू वर्क हार्ड, तो उसमें आप फिर ये डाल दोगे कि भाई इस टाइम पर मुझे ये प्रिपरेशन करना है. कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है ना. ऐसा नहीं होता है कि यार मेरे को 10 से 1 ही पढ़ना और उसमें से मुझे कुछ डाल देंगे. 10 से किसी दिन 12:30 भी हो सकता है, किसी दिन 12 भी हो सकता है. रोज नहीं होना चाहिए, बट कभी कभी हो सकता है कि मेरा आज का ये टास्क पूरा हो गया, राइट? सो दैट इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई टास्क एंड यू कैन डू सर्टेन थिंग्स. इसमें क्या होगा कि यू विल बी एबल टू टेक बोथ थिंग्स इन योर हैंड्स. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर पूरा फोकस किया है, दूसरी चीज में मतलब पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है, एकदम देख लेंगे बाद में हो जाएगा, कम प्रिपरेशन कर लेंगे, उस टाइम पर 10 घंटे पढ़ लेंगे. होता क्या है ना, किसी आई थिंक यू गाइस वुड हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर CLAT एग्जाम और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम यू वांट टू प्रिपेयर, ऑल ऑफ दैट इज अ प्रोसेस. लाइक दीज आर नॉट द काइंड ऑफ एग्जाम जो आप 10 दिन में 20 दिन में क्रैक कर लोगे. आपको थोड़ा सा उसके लिए टाइम चाहिए टू गेट यूज्ड टू द पैटर्न, टू गेट यूज्ड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, डू अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, अंडरस्टैंड विद सम क्लासेस एज टू हाउ टू गो अबाउट इट, राइट? So what we have done, and we understand that this is the problem that a lot of you are facing. चाहे कोई 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट अभी CLAT के लिए प्रिपेयर कर रहा हो या 12th बोर्ड का स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा हो, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, राइट? So what we have done for you, we have launched a recent batch called Udaan and Udaan Plus. These batches are genuinely guiding you
एज पर योर अंडरस्टैंडिंग कि भाई एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, एज पर आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई आपको बोर्ड में इतना टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि दिन में 5 क्लासेस रख दी या फिर आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक कर दिया। तो इससे होगा क्या ना, आपको फायदा ये होगा कि आप आराम से अपनी चीजों को शेड्यूल कर पाओगे। ठीक है, उड़ान या उड़ान प्लस आप ज्वाइन कर सकते हो। यू नो अबाउट द अफोर्डेबिलिटी, अबाउट शकुंतला स्कॉलरशिप एंड एवरीथिंग एल्स। आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट दीज बैचेस। दे विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू गाइड यू। आप बोर्ड के साथ बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, अगर आप कोई अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वी हैव अ कपल ऑफ बैचेस व्हिच इज उन्नति फॉर MHCT 2025 एंड संघर्ष फॉर CUET 2025। आप उन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आल्सो। सेम नंबर्स पर कांटेक्ट करो, विजिट 12minutes2clat.com। हमारी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। इनका स्टार्ट प्रिपरेशन राइट अवे। सी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि इफ यू स्टार्ट नाउ, चाहे वो बेसिक है, एंड आई एम नॉट आस्किंग कि आप मतलब बहुत ही ज्यादा एकदम मतलब लेते ही चलो, लेकिन अगर आप लेट्स से पहले का थोड़ा सा कवर करते रहोगे धीरे धीरे, लेट्स से फॉर एग्जांपल समथिंग एज बेसिक एज न्यूज़पेपर, एज बेसिक एज लेट्स से 1 or 2 क्लासेस अ डे, तो आप एटलीस्ट यू विल बी इन द लूप। यू विल नॉट बी somebody who maybe did it for the last time in December and then came again to it let's say in April or maybe let's say at end of March and then 4 महीने में सब कुछ भूल गए, टेस्ट देना नहीं आ रहा है, बैठना नहीं हो पा रहा है, टाइम मैनेजमेंट इज नॉट हैपनिंग। सो दिस पर्टिकुलर ड्रिल ऑफ मैनेजिंग योर टाइम फ्रॉम दोस 4 स्लॉट्स विल आल्सो हेल्प यू विद योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, राइट। तो इसीलिए आप थोड़ा सा स्ट्रेस तो होगा इसमें मेहनत लगेगी, इसमें आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। यू विल हैव टू कट डाउन ऑन सर्टेन थिंग्स एंड सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। Most of the students who are unable to do or manage their 12th standard along with, you could say, their law exams are those students who do not have a structured approach in mind. They don't have a schedule. They just परेशान है बस वो, है ना। वो YouTube पे इधर उधर आके बस ये लिख रहे हैं कि हम परेशान है, how do we manage it? They're not trying to figure out the solutions for it. They're either procrastinating, वो lazy हो रहे हैं थोड़ा सा, है ना, या फिर वो अपना खुद का एक शेड्यूल ही नहीं बना पा रहे, which they do not know how to do it. So I think this session is pretty much clear as to how to make your own schedule, how that schedule can work out really, really well for you, and how can you then proceed ahead with your preparation for both the exams and in fact do, you could say, well in both, right? So that's it about this particular session. Thank you so much again for being a part of this. If anybody has any doubt that I discussed in this particular session, feel free to mention that in the comment box and I'll be very happy to see you and guide you till your OLET or a CLAT journey in my classes as well. All the best, guys.